जो भक्त लोग भौतिक शास्त्र की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। He has given many seminar on books like हरिनाम चिंतामणि and other आचार्य's books। तो जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी के ऊपर इन्हें बहुत अच्छे सेमिनार दिए हुए हैं। उसमें से एक विशेष है हरिनाम चिंतामणि, और इस प्रकार कई सेवाओं में युक्त हैं प्रभु वहाँ पर भक्ति विज्ञान विद्यापीठ में। तो हमारा आज सौभाग्य है कि आज हमको उनका संग प्राप्त हो रहा है। तो ऑल टुगेदर वेलकम प्रभु। हम सभी मिलकर प्रभु जी का स्वागत करेंगे चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू प्रभु। ओवर टू यू प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण। So thank you all very much for joining this session। सबको बहुत धन्यवाद आज का ये सेशन में आने के लिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Prabhu, so how would you want to do? My Hindi is very kacha actually. I am from South India, so I can try to translate with little bit broken Hindi, whatever I know, or I'll speak in Hindi and you will translate. Whatever, I'm okay with both. So whatever you say, we could do. Okay, Prabhu. So you can speak in English, Prabhu. I'll translate, Prabhu. I'll try to translate. Okay, perfect. Thank you. Okay, so so thank you very much for giving me this opportunity to share Krishna Katha with all of you. I have been asked to speak on the first canto, 6th chapter, verse number 20 to 25. तो बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये अवसर देने के लिए, श्रीमद् भागवतम के ऊपर कथा करने के लिए। और आज श्रीमद् भागवतम का जो हम खंड पढ़ेंगे, पहले स्कंद के 6वें अध्याय का 21 से 25 श्लोक। So I will share the screen basically, and then we will try to read and try to understand from that. प्रभु जी स्क्रीन में दिखाएंगे, यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे श्लोकों को। So we saw that you know, the episode of Narada Muni is going on, and in the beginning of the chapter, after, if you remember, in the 5th chapter of first canto, Narada Muni instructed Vyasadeva on the signs of bhakti very strongly. तो श्रीमद् भागवतम में जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस कथा में 5वें स्कंद से जैसे कथा चल रही है श्री नारद मुनि की, 5वें अध्याय से, और उसके पश्चात 6वें स्कंद में यहाँ अध्याय में बहुत ही गंभीर रूप से वो अपने जीवन से वो किस प्रकार से फिर वो भक्ति वेदांतियों की जाने के पश्चात क्या कार्य करते हैं, वो यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। एक्चुअली प्रभु जी प्रभु जी थोड़ा आगे चले गए, अभी तक उधर तक पहुंचा नहीं मैं, पर then after teaching about the nature of bhakti, actually Narada Muni shares his own life story about how he served the Bhakti Vedantas, and through the service of Bhakti Vedantas, how he got benefit. So he speaks about that. तो भक्ति की व्याख्या करने के पश्चात नारद मुनि अपने जीवन के इतिहास के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो भक्त आए थे उनकी सेवा करके और किस प्रकार से उनको ये प्राप्त हुआ भक्ति का ज्ञान। So then he say, then Vyasadeva gets this question that what happened between the time that you are a maid servant's son and currently now that you have become Narada Muni, what happened in between? तो व्यास जी जिज्ञासा करते हैं कि फिर इस बीच में जब आप
आया के पुत्र थे और अभी आप नारद मुनि हैं, इनके बीच में क्या हुआ? So then, so when asked this question, that uh, then Narada Muni continues that after they taught and left, actually, what happened? He says that how did you quit this body? Actually, Vyasdev asked, how did you quit this body and how did you attain the body of Narada Muni, which you are having currently? तो उन्होंने पूछा कि उनके जाने के पश्चात फिर आपने किस प्रकार से ये शरीर जो था आपका पहला वाला शरीर, उसको त्याग करके और ये शरीर जो दिव्य शरीर है नारद मुनि का, कैसे प्राप्त किया आपने? So then he says that and how is it that you are able to remember whatever happened? How is it that you are able to remember whatever happened in the previous life? Because time destroys everyone's memory. Because in Bhagavad Gita also it says Mrityu Sarva Haraschaham. Mrityu destroys everything. So how is it that you are able to remember everything when time has the capacity to destroy everything, actually? और तब और उन्होंने जिज्ञासा किया कि किस प्रकार से आपने, जो काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है, कैसे आपकी स्मृति बनी रही? भगवत गीता में बताया गया है कि काल के साथ में, मृत्यु के साथ में सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ हर लिया जाता है, तो आपकी ये स्मृति कैसे बनी रही? So then Narada Muni starts discussing that after those Bhakti Vedantas left, actually he started practicing as they guided him. और तब उन्होंने बताया कि कैसे भक्ति वेदांतों के जाने के पश्चात जो मैंने उनसे सीखा था वैसे मैंने अभ्यास करना शुरू किया. Then one day when his mother was serving, and his mother was uneducated, and she did not have her husband staying with her, and Narada Muni was her only son, so she had great affection for Narada Muni. तो फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके जो माता थी वो अशिक्षित थी, उनके पति नहीं थे, लेकिन उनको बहुत आसक्ति थी, बहुत स्नेह था अपने पुत्र से. And then one day, and in the same way, Narada Muni was also very much dependent on her. And one day, actually, while she was milking a cow, a snake bit her, and she left her body. उसी प्रकार नारद मुनि भी उनके ऊपर काफी निर्भर थे, और एक दिन जब वो गाय का दूध निकाल रही थी, एक सर्प ने उनको डस दिया और उनका प्राण त्याग दिए. And this was the glory of the Siksha, or the teachings that he had received from the Bhakti Vedantas, that they were so advanced, and Narada Muni was such a good student, that in such a short time, just 4 months of time, when his only dependable shelter, when his mother left her body, Narada Muni could see this situation as the mercy of Lord, and he could see that the Lord was orchestrating this for the welfare of his devotees, and then he immediately started walking in the northern direction to perfect his life. और नारद मुनि को इतनी भक्ति वेदांतियों से केवल 4 महीने में जो शिक्षा उन्हें ग्रहण की थी, जो सीखा था उन्होंने, वो इतने उन्नत भक्त थे कि ये अवस्था को वो देख पाए कि ये भगवान के द्वारा एक आयोजित ये अवस्था है जिसमें वो भगवान मुझे अपने चरणों की ओर खींच रहे हैं, और वो उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू कर दिए. So this is the nature of a devotee. When one progresses on the path of devotional service, he can see every situation that a person is put in, he can see it as the special arrangement of the Supreme Personality of Godhead. तो ये उन्नत भक्तों की अवस्था होती है जो भक्ति में उन्नति कर रहे हैं. वो हर एक अवस्था को भगवान की योजना, भगवान की कृपा समझते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं.
So in this way, that's what is mentioned. Tattenu kampam susamikshamano bunjana evatma kritam vipakam hridvag vapurbir vidadan namaste jivetayo muktipade sadaya bhak. In this verse, it is mentioned that um, tattenu kampam susamikshamano. So someone is able to perfectly see that whatever situation that one is undergoing is perfectly organized by Krishna. तो इस श्लोक में बता रहे हैं 10वें स्कंद के श्लोक से कि किस प्रकार हर एक अवस्था में वो देख पाते हैं कि ये भगवान के द्वारा पूर्ण रूप से नियोजित अवस्था है ये। Bunjana eva atmakritam vipakam, and they are able to see that my suffering is because of my own offenses that I have committed towards other people. और ये भी देख पाते हैं कि मेरा जो कष्ट है वो मेरे जो पूर्ववर्ती ऐसे कुछ विगत दुष्कर्मों के परिणाम हैं वो मुझे प्राप्त हो रहे हैं। Kridvag vapurbir vidadan namaste. So that is why using their heart, their words and their body, they are again and again offering obeisances, because they are able to see that that situation is completely under Krishna's control and Krishna is doing it for my benefit. और अपने हृदय से, वाणी से और शरीर से वो हमेशा भगवान की सेवा में युक्त रहते हैं, क्योंकि वो देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि सारी जो अवस्थाएं हमारे जीवन में आ रही हैं ये भगवान के द्वारा आयोजित हैं मुझे अपनी ओर अग्रसित करने के लिए, मेरे लाभ। जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय बक. One who lives his life with this understanding, he is qualified for attaining liberation. और जो इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं वो मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं. So there are actually, I will just draw a small table. So there are 3 categories of people. There could be actually more categories, but just for simplicity purpose, so let me just divide the people into 3 categories of people. तो 3 प्रकार के वर्गीकरण यहाँ पे करूंगा, हालांकि ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सहजता के लिए समझने के लिए मैं 3 प्रकार के व्यक्तियों का यहाँ पर निरूपण करूंगा. First are the materialists. तो पहले जो कर्मी होते हैं. Then there are perfected devotees. दूसरे जो सिद्ध भक्त होते हैं, who are at the stage of bhava or prema, जो कि भाव या प्रेम की अवस्था तक पहुंचे होते हैं. And the third are the sadhakas. और तीसरे जो people like us, जो साधक भक्त हैं, जैसे हम सब प्रयास कर रहे हैं. So the situation that they are in and their response to that situation, what controls their situation that they are put in, and how they respond to that situation, who controls it, so that we are going to see. तो वो जब किसी अवस्था में होते हैं, कौन उनकी अवस्था का नियंत्रण, और जब उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, किस प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया होती है हर एक अवस्था में. So the materialist, the situation that they are put in, whether a very suffering situation or a very happy situation, their situation is controlled by their own karma. तो जो कर्मी होते हैं उनके जीवन में चाहे वो सुख हो या कष्ट का विषय हो, वो उनके अपने कर्मों के अनुसार आते हैं. And whatever situation that they are put in, how they respond to that situation is defined by their swabhava or their vasanas, which are controlled by the 3 modes. और उस अवस्था में उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो उनके स्वभाव या वासना, जो कि प्रकृति के 3 गुणों से नियंत्रित होते हैं, उसके अनुसार होता है. And for perfected devotees like Narada Muni or Srila Prabhupada and all the great Vaishnavas,
the situation that they are in is controlled by Krishna. और जो सिद्ध भक्त होते हैं जैसे श्री नारद मुनि, श्री प्रभुपाद जी, इनके जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वो भगवान के द्वारा नियंत्रित होती हैं। And their response to that situation is controlled by their spontaneous love for Krishna. और उनकी जो प्रतिक्रिया होती है उस स्थिति में वो भगवान के लिए जो राग प्रेम होता है उसके अनुसार होता है। So whatever situation that they are put in, whether it is suffering, they respond to that suffering situation being driven by their love for Krishna. And when they are put in a happy situation, they respond to that situation being driven by their love for Krishna. तो चाहे वो सुख या दुख किसी भी अवस्था में अगर परिस्थितियां आ रही हैं उनके जीवन में, वो उसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर के प्रतिक्रिया करते हैं। And for sadhakas like us, right? So we are conditioned souls, right? So our situations are also controlled by Krishna. और जो साधक भक्त हैं, जैसे कि हम सब बताने प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी जो स्थितियां होती हैं वो भी कुछ हद तक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नियंत्रित होती हैं। और कब से, कौन सा परिस्थिति से, from what stage of one's practice does Krishna take over? Does Krishna take over from the law of karma and he personally handles the devotee right from the stage of Adav Shraddha? और कब से ऐसा होता है कि भगवान वो कर्म के नियम जो होते हैं उसके जो अधीन जो हमारी स्थितियां होती है उसको अपने अंदर लेते हैं, अपने नियंत्रण में। वो श्रद्धा से शुरुआत होती है उसकी। But a sadhaka's response, whatever situation Krishna puts a sadhaka in, his response to that situation can come from two things. One is he has pure devotional faith, or he can respond again due to his vasanas. लेकिन उस परिस्थिति में उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो दो चीजों पर निर्भर हो सकती है। एक तो उनका जो शुद्ध प्रेम की जो अभिलाषा है, और दूसरा अभी भी जो वासना के वशीभूत हैं उसके वशीभूत होकर के कर्मों के जो प्रकृति के नियम हैं उनके ऊपर निर्भर हो सकती है उनका प्रतिक्रिया। Yeah, very nice. You use the word abhilasha. It can either depend on their abhilasha. They may respond according to their abhilasha, anukulyasya sankalpo pratikulyasya varjanam, or they can respond according to their anartha. तो या तो वो उनकी जो अभिलाषा है शुद्ध भक्ति की, या तो उनके जो अनर्थ हैं उसके ऊपर उनका प्रतिक्रिया निर्भर करता है। So when Krishna puts a sadhaka in a particular situation, they may say, look, this is very favorable for my bhakti, and if I act in this way, Krishna will be pleased, Guru will be pleased, so I will act in that way. So in that way they can respond to their faith also. तो जब ऐसी अवस्था आती है तो वो इस प्रकार से सोच सकते हैं कि भगवान ने मुझे स्थिति में रखा है, अगर मैं इसको इस प्रकार से प्रतिक्रिया करूंगा तो ये भगवान श्री कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करेंगे, और वो उनके विश्वास को, श्रद्धा को और बढ़ाते हैं। Or sometimes he may think that, look, I know that it is very favorable for my bhakti, but I am not able to tolerate the urge of my tongue, the urge of my ears. My vasanas are pulling me so hard, and I am very quickly losing my battle in this fight with my uncontrolled senses. So they may lose the battle and succumb and act according to their vasanas. और दूसरी स्थिति में वो देखेंगे कि हाँ मुझे भक्ति तो करनी है, लेकिन ये जो वेग आ रहे हैं मेरे इंद्रियों के द्वारा, जो वेग जो या मुझे ये प्रभावित कर रहे हैं, ये इनके साथ में संघर्ष में नहीं कर पा रहा हूँ, और वो उस स्थिति में अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और प्रकृति के नियम के द्वारा बाधित निर्णय लेंगे।
Hare Krishna, Prabhu. We lost your voice, Prabhuji. प्रभु और कोई सुन पा रहे हैं कि मैं ही सिर्फ नहीं सुन पा रहा हूँ प्रभु जी? अच्छा, प्रभु जी का शायद ओके. So he left. Maybe he will again. He will join. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Yes, Prabhu. Vasanta Prabhuji has joined again, so please. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hari Bol Prabhu. Sorry. Yes, Prabhu. Please, Prabhu. I got disconnected. I'm sorry. No issue. So we were discussing on this theme about how a sadhaka, his situation is also controlled by Krishna, but his response, he may sometimes respond according to his pure devotional faith, or sometimes in moments of weakness, he may succumb to his vasana. तो हम लोगों ने ये अभी श्रवण किया कि किस प्रकार से जो साधक होते हैं उनके जीवन में भी स्थितियां वो भगवान आयोजित करते हैं परिस्थितियां, लेकिन उसका जो प्रतिक्रिया है वो या तो उनके शुद्ध प्रेम की अभिलाषा के अंतर्गत हो सकता है, या तो उनके अनर्थों से वशीभूत होकर के वो उस पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं. Okay, so so this is something, but whenever he succumbs to the vasana, Krishna is not very happy, but Krishna again gives another chance. तो जब वो अपनी वासना के वशीभूत होकर अनर्थों से प्रेरित होकर के जब उसका वो प्रतिक्रिया देते हैं तो भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होते और उनको पुनः अवसर प्रदान करते हैं. Just like you have a you can say like a GPS system. GPS says go 200 meters and turn left, but you may not turn left, you may keep moving straight, and then what the GPS system will do, it will again recalibrate, and it will okay, from wherever you have reached right now, how you can reach your destination, it will again give you a new route. जैसे कि जीपीएस सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को जाना होता है तो वहां पर जब वो पता डाल देते हैं तो वो उसको गाइड करते हैं, और कहीं से आपने अगर वो मुड़ना भूल गए, आप कि आपको बाएं मुड़ना है, भूल गए और आप सीधे चले गए, तो पुनः एक वो रिकैलकुलेट करके बताएंगे कि ठीक है, वहां से आपको अपने गंतव्य पर जाने के लिए कैसे आपको दूसरा रास्ता से जाना पड़ेगा. So similarly, Krishna does not give up on his devotees. How many ever times they may fall trapped to their material conditioning, but they should ensure that they don't commit the seventh offense. Namno balad yasya hi apabuddhi.
they should not commit sinful activities on strength of the holy name or the strength of the process of bhakti. तो उसी प्रकार भगवान कभी भी उस भक्त को जो भगवान की शरणागत साधना भक्ति में युक्त हैं उनको नहीं छोड़ते हैं, बजाय कि अगर वो एक स्थिति में जब वो सातवां नाम अपराध, नाम के प्रति जो अपराध है कि बल नाम के बल पर पाप करना, जब उस प्रकार के कार्य में वो युक्त नहीं है तो निश्चित रूप से भगवान उनको नहीं छोड़ते हैं. So this way Narada Muni considered that her death was the mercy of God. He could clearly see, and this vision is very clearly indicative of his very advanced stage of devotional service. और इस प्रकार से उनकी माता की मृत्यु का समाचार मिलने पर भी वो उससे बिल्कुल विचलित नहीं हुए. ये उनके बहुत ही उन्नत अवस्था का प्रतीक है. Then it is mentioned that how he passed through many different areas, cities and villages and mines and farms, which were either very attractive or very convenient, or where he could rest or where he could get lot of wealth, and was absolutely detached. He was very focused on his goal and he wanted to perfect his life, so he did not stop anywhere. और उसके पश्चात हमने श्रवण किया किस प्रकार से वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर की ओर, और कई स्थानों पर जहाँ पर बहुत ही आरामदायक, बहुत अच्छे, बहुत प्राकृतिक ऐसे वातावरण भी हैं जहाँ पर वो रुक सकते थे, आराम कर सकते थे, लेकिन वो नहीं, एक निष्ठ होकर अपने गंतव्य की ओर, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहे. And he was also passing through many very fearful forests which were filled with lot of wild animals, and he was not overcome by fear even though he was just 5 years old. और उसके पश्चात ऐसा भी वर्णन है कि कई स्थानों पर वो जो है ऐसे स्थानों से गुजरे जो कि बहुत भयानक जंगल थे, और सिर्फ 5 वर्ष के थे, लेकिन फिर भी वो भयभीत नहीं होते हैं ऐसे स्थानों से. And this abhayam is said to be the first of the divine qualities. Abhayam sattva samshuddhir jnana yoga vyavasthitihi. So this nature of being fearless comes from a solid internal purification, sattva samshuddhi. और ये अभयम जो पहला दिव्य गुण आता है भक्तों के अंदर, वो जो सत्व शुद्धि होती है अंदर, आंतरिक रूप से जब सत्व शुद्धि होती है, उसी के ऊपर ये आधारित होता है अभयम. Especially only when one has transcended the modes of rajas and tamas, or rajogun and tamogun, only such people can actually show this kind of fearlessness. तो जो रजो और तमो गुण के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं, उससे दूर हो चुके हैं, वही ये अभयम का गुण प्रदर्शित कर सकते हैं. So for a practitioner of bhakti, this victory over the rajogun and tamogun happens at least at the stage of nishta or ruchi. That's what Bhagavatam says. Tada rajas tamo bhava kamalobhadayaschaye chetayete naviddam sthitam sattve prasidati. How person who reaches the stage of nishta or ruchi, at time rajas tamo bhava, the influence of rajogun and tamogun starts subsiding, or it subsides almost completely, and sattvagun becomes very prominent. And one of the very prominent symptoms of sattvagun is lack of fear. श्रीमद् भागवत में बताया गया दूसरे अध्याय में किस प्रकार से कि जब रजोगुण सत्वगुण जो है इसका प्रभाव समाप्त होता है, जब व्यक्ति निष्ठा या रुचि के स्तर पर पहुंचते हैं, तब जाकर के वो इससे परे होकर के और सत्वगुण में स्थित होते हैं, जहां पर कि उसका लक्षण है अभय, निर्भय होना. So then he came to a particular place where he became little exhausted, so he drank some water, took bath, drank some water, and he took some rest. तो उसके बाद एक स्थान पर पहुंच करके वो जो बनियन का जो वृक्ष था उसके नीचे बैठ करके स्नान करते हैं और कुछ जल ग्रहण करते हैं. Then he started meditating. After he gets up, he started meditating
fixing his intelligence on the Lord in the heart, and when as soon as he started meditating on the lotus feet of the Lord, his mind became completely conquered by the love of Godhead, and immediately the symptoms of bhava, the ashtasatvika vikaras, you know, the tears flowing from the eyes, hair standing on end, and all those ashtasatvika vikaras started manifesting in his body. और तब उसके पश्चात वो जो विधि कुछ सीखे थे उससे उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाना शुरू किया एकाग्र होकर के, और उस ध्यान में वो इतने प्रफुल्लित हो गए कि वो उनके शरीर में जो है वो अष्ट सात्विक विकार जो हैं वो सारे प्रकट हो गए. Then because he was seeing the Lord within the heart, therefore he manifested all these symptoms of ecstasy, and suddenly what happened, the Lord completely unmanifested. He disappeared from the vision of Narada Muni. और चूंकि वो इस विकार से जो उनको अष्ट विकार हुए उससे सब उनकी जो प्रेम की प्रफुल्लता हुई, भगवान का दर्शन हुआ उनको, भगवान का हृदय के अंदर भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, और कुछ ही समय के पश्चात, कुछ क्षण के पश्चात वो भगवान का दर्शन विलुप्त हो गया. And at this point of time, Narada Muni became, he says, I became very despondent, like someone who has lost a treasure. After achieving something very valuable, when someone loses that treasure, he becomes very, very disturbed in his mind. And Narada Muni similarly became extremely disturbed when the form of the Lord disappeared. और तब नारद मुनि कहते हैं कि जैसे किसी के पास से कोई बहुत मूल्यवान वस्तु चली जाए, वैसे ही नारद मुनि वो दर्शन जाने के पश्चात बिल्कुल चिंतित हो गए, बिल्कुल वो बहुत विचलित हो गए कि कैसे फिर दर्शन करूंगा, जैसे कोई बहुत मूल्यवान वस्तु उनके पास से चली गई. Actually, this is the nature of bhava, that which is described in Bhakti Rasamrita Sindhu. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami defines what this nature of bhava is. So he quotes this verse: Utpanna ratayah samyag nairvignyam anupagataha Krishna sakshat kritau yogyaha sadhaka parikirtita. So the definition of bhava, he says, Utpanna ratayah. Utpanna ratayah means he has developed great love for Krishna. वो कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो गया उनका हृदय में, पर सम्यक नैर्विघ्नम अनुपगताः, but he has, but full-fledged destruction of anarthas has not happened. पूर्ण रूप से उनका हृदय में अनर्थ निवृत्ति हुआ नहीं है, right? So but Krishna sakshat kritau yogya, he has developed the yogyata, he has developed the qualification to personally see Krishna, personally smell the fragrance emanating from the body of Krishna, and personally hear the sound emanating from the mouth of Krishna. वो कृष्ण को साक्षात देखने के लिए योग्य हो गए, उनका आवाज को सुनने का योग्य हो गए, और उनका शरीर से जो दिव्य सुगंध आ रहा था उसको सूंघने के लिए वो योग्य हो गए. पर सम्यक नैर्विघ्नम अनुपगताः, there was no full complete destruction of anarthas within the heart at the stage of bhava. Still anarthas or unfavorable desires which are born out of prior commission of great offenses, they are still there. भाव का परिस्थिति में जो पहले जो किया हुआ अपराधों के वजह से जो लेश मात्र में कुछ अनर्थ है, जो अनफेवरेबल जो इच्छाओं है, वो थोड़ा बहुत रह जाता है भाव का स्तर पे, वो प्रेम का स्तर पे पूर्ण रूप से जाता है.
तो इसलिए जो भगवान का जो दर्शन है वो एकदम लगातार वो दर्शन उनको मिलता नहीं है। दर्शन लेने के लिए योग्य है, पर वो लगातार वो दर्शन उनको मिलता नहीं है। सो यही है भाव और प्रेम का जो स्तर है उसका डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन भाव एंड प्रेम। एट द स्टेज ऑफ भाव, the darshan of the Lord or one's experience of the Supreme Lord is sporadic, not very continuous. But at the stage of prema, it becomes very continuous because the tinges of you know the anarthas are gone. So in the very next verse, actually he defines prema. So how is prema different from bhava? प्रेम भाव का स्तर से कैसा अलग है? सो प्रेमा इज इट इज मेंशन अविज्ञात अखिल क्लेश सदा कृष्ण आश्रित क्रिया सिद्धासु संतत प्रेम सौख्य आस्वाद परायण. सो अविज्ञात अखिल क्लेश, even the last tinge of anartha is gone. Even the अनर्थों का जो आखिरी जो लेश मात्र जो बचा कुचा है वो सब चला जाता है प्रेम का स्तर पे. इसलिए सदा कृष्ण आश्रित क्रिया, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम. So as Chaitanya Mahaprabhu says, at every moment he is able to taste the presence of Krishna, or taste the nectarian presence of Krishna. एक हर पल में, हर क्षण में वो कृष्ण का प्रेम का आस्वादन करने के लिए योग्य हो गए. भाव का स्तर जैसा टूटा फूटा उनका, जैसा हमारा इंटरनेट कनेक्शन अभी हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी वो थोड़ा टूट जाता है, तो वैसा नहीं है. तो प्रेम का स्तर पे एकदम नॉन स्टॉप, एक ऐसा तेल का धारा के जैसा, जस्ट लाइक flowing oil without any cutting. You know, one can experience the bliss of the Supreme Personality of Godhead. Siddha Hasyu. Such a person is called a Siddha, or one who has reached the stage of Prema. प्रेम का स्तर पे जो पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष लोग हैं, उनका ये लक्षण है. संतत प्रेम सौख्य आस्वाद परायण. They are qualified to experience the taste of continuous prema. प्रेम का निरंतर बिना रुकावट का जो आस्वादन करने के लिए योग्य हो जाते हैं प्रेम का स्तर पे, पर भाव का स्तर पे वैसा नहीं है. तो अभी नारद मुनि has reached that stage of bhava where he is not completely free of all anarthas. That's why his experience of Krishna is broken. अभी नारद मुनि पूर्ण रूप से अनर्थ निवृत्ति का स्तर, अनर्थ निवृत्ति पूर्ण रूप अनर्थ निवृत्ति का प्राप्त किए नहीं है. इसलिए जो भगवान का जो अनुभूति है वो बहुत ही टूटा फूटा है. अभी उनको देखे, पर सडनली वो देख नहीं पा रहे थे, और सडनली वो एक आवाज सुनाई दिया उनको. Suddenly he started hearing a voice. So before that, Narada Muni, he was again and again, what did I do differently? Let me now again try to meditate again and again. तो वैसे पहले जैसा किया, उसको ही वो रिपीट करने का प्रयास कर रहे थे. अरे क्यों चला गया, वैसे वो सोच के मैंने कुछ गलती किया क्या, तो बार वैसा ही वो मेडिटेशन करने का प्रयास कर रहे थे. Then but still he was not, the Lord would not give his darshan to him again, but he spoke with great affection. तो दर्शन तो नहीं दिए भगवान, पर बहुत ही एकदम स्नेह भरी आवाज से नारद मुनि को संबोधन कर रहे हैं भगवान. एंड वो आवाज को सुन के ही नारद मुनि का हृदय से जो वो एकदम वो दुख था वो चला गया. जस्ट हियरिंग दैट अफेक्शनेट वॉइस ऑफ कृष्णा, the distress of Narada Muni actually left.
So this is where actually this is, I have to start from this verse. So this is the nature of भाव is that the experience is very sporadic. भाव का ये लक्षण है कि भगवान का जो साक्षात्कार है, भगवान का जो देखने का जो योग्यता है, वो एकदम कंटिन्यूअस नहीं रहता है, वो टूट टूट के रहता है. So then it is mentioned, भगवान बोलते हैं, हन्तास्मिन् जन्मनि भावान् मामां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायानां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां. बोलते हैं कि हंत, हे नारदा, ओ नारदा, अस्मिन् जन्मनि, इन दिस लाइफ, ये जन्म में, भवान माम द्रष्टुम इह अर्हति, ये जो बॉडी में, इन दिस वेरी बॉडी, यू कैन नो लॉन्गर सी मी, आप ये जन्म में आप मुझे दोबारा दर्शन कर नहीं पाएंगे. क्यों? अविपक्व कषायानाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम. दो प्रकार का, आई डोंट शो माई सेल्फ टू टू काइंड्स ऑफ पीपल. अविपक्व कषायानाम, to those people who are, whose anarthas are not completely destroyed from their hearts, to those sadhakas in whose heart complete purification has not yet been accomplished, I don't show myself to them. Or kuyoginam. Kuyoginam means actually yogis who are incomplete in their service, or those who are bogus yogis, right? तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि दो प्रकार का लोगों को मैं दर्शन कभी भी नहीं देता. एक है जो साधक है, जिसका हृदय में अनर्थ निवृत्ति पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, उसको मैं कभी दर्शन नहीं देता हूँ. और जो कुयोगी है, जो इनकम्प्लीट योगी है, जो योग का साधना को पूरा नहीं किया या गलत प्रकार का योग कर रहा है, उसको भी मैं कभी भी दर्शन नहीं देता हूँ. So therefore it is mentioned here, Jiva Goswami, Jiva Goswami mentions in his commentary that Narada Muni did not have any tinges of Rajogun or Tamogun, but some impurity with very completely purified material Sattva-guna was there. That is why Narada Muni was little bit attached to staying in the forest. तो जीव गोस्वामी उनका टीका टिप्पणी में ऐसा बताते हैं कि नारद मुनि में रजोगुण या तमोगुण का जो प्रभाव नहीं था, पर पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व नहीं है, पर शुद्ध भौतिक सत्व, भौतिक सत्व गुण का लेश मात्र का प्रभाव था. इसलिए उनको थोड़ा वन में रहने का थोड़ा इच्छा था. भगवान 11वां स्कंद में बोलते हैं, वनम तु सात्विको वासो मद निकेतनम तु निर्गुणम. So Krishna tells in the 11th canto of Bhagavatam in Uddhav Gita that vanam tu satviko vaso, staying in the forest is in mode of goodness, mad niketanam tu nirguna. But one who stays in my temple, my temple is beyond three gunas. जो वन में जो वास करते हैं वो सत्वगुणी है, पर जो भगवान का मंदिर में वास करते हैं, जो भगवान का मंदिर है, वो तीन गुणों से परे है. So like that. So that's what here Krishna is indicating to Narada Muni, that you still have some traces of material contamination because of which you cannot see me. आपका हृदय में लेश मात्र का अनर्थ अभी भी है. जब तक वो पूर्ण रूप से जाता नहीं है, आप मुझे देख नहीं पाएंगे. तो ये लाइफ में आपको मुझे दोबारा देखना थोड़ा मुश्किल है. So therefore Prabhupada भी लिखते हैं उनका परपोर्ट में, to search the audience of God in a lonely forest is considered to be in the mode of goodness. भगवान को एक ये
फॉरेस्ट में या वन में खोजना, ये भी एक सत्वगुण का इंडिकेशन है। सो सत्वगुण का जो इंडिकेशन, one can go out into the forest to attain spiritual perfection, but that does not mean that one can see the Lord personally there. One must be completely freed from all material attachment and be situated on the plane of transcendence, which alone will help the devotees to get in personal touch with the Supreme Personality of Godhead. चाहिए तो कोई वन के अंदर प्रवेश कर भी सकते हैं और भगवान को खोज भी सकते हैं, पर भगवान का दर्शन उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो वन के प्रति जो आसक्ति है वो सत्वगुण का लक्षण है, और वो सत्वगुण से भी वो पूर्ण रूप से जब शुद्ध हो जाते हैं तब वो भगवान का दर्शन करने का लायक हो जाते हैं। एक्चुअली it is not, even if one may be completely purified of the influence of sattvagun, rajogun and tamogun, he is still not qualified to see the Lord. Actually, one should not just, because even by practice of nishkama karma yoga, the heart becomes purified of the influence of sattvagun, rajogun and tamogun, but one still cannot see the Lord. For that, anartha nivritti is not sufficient. Artha pravritti is needed. The favorable devotional impressions also have to be written in the heart, and those favorable spiritual emotions have to manifest and flourish in the heart, and only at the perfected stage of that one can see the Lord. तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हृदय का शुद्धिकरण होने से भगवान का दर्शन मिल जाए। तो अनर्थ निवृत्ति से हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, पर हृदय का शुद्धिकरण होने से भगवान का साक्षात दर्शन मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो निष्काम कर्मयोग करता है तो उनका भी हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति तो हो ही जाता है, पर निष्काम कर्मयोग का जो सिद्ध होने से भगवान का दर्शन नहीं मिलता है। पर उसके लिए अनर्थ निवृत्ति काफी नहीं है, पर अर्थ प्रवृत्ति का भी जरूरत है। अर्थ प्रवृत्ति कैसा होता है? अनर्थ निवृत्ति के बाद जब निष्ठा, रुचि, आसक्ति का स्तर पे जब भक्ति का जो वासनाएं हृदय में अर्जन होते 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 भाव का स्तर पे और भक्ति भावना में वो जो परिवर्तित हो जाते हैं, और वो भक्ति भावना का स्तर पे वो संवित, संदिनी और ह्लादिनी शक्ति मिलजुल के वो भक्ति का जो आध्यात्मिक भावनाओं को प्रकट करता है। वो आध्यात्मिक भावनाओं का स्तर पे भगवान का दर्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि अनर्थ निवृत्ति, जब हृदय का शुद्धिकरण हो गया तो भगवान उधर प्रकट होंगे, वैसा कुछ जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट बाय anartha nivritti the Lord will manifest within the heart, right? So so therefore that is what Prabhupada is also mentioning here. Prabhupada is making a very important point here. A neophyte devotee is always recommended to worship the deity of the Lord rather than going to the forest to search for the Lord. Devotional service begins from the process of archana, which is better than going out in the forest. So Prabhupada बोल रहे हैं इधर, आप वन में जाके खोजो मत भगवान को। अगर जो कनिष्ठ भक्त है वो जो मंदिर में जाके भगवान का अर्चा विग्रह को पूजा करने के द्वारा बहुत ही जल्द से जल्दी हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है और जो भगवान का दर्शन हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत सारा जगह पे बोलते हैं कि जो साधक है उसको स्मरणम से भी ज्यादा अर्चनम का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है अर्चन। क्योंकि अर्चन जो ऐसा एक भक्ति का अंग है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो इंद्रिय है और मन है और बुद्धि है, सबका जो यूटिलिटी हो जाता है वो भक्ति में। तो इसलिए जो वो
एकदम एकाग्रता जो अर्चनम में मिलता है, और वो एकाग्रता की वजह से बहुत ही जल्द से जल्दी जो शुद्धिकरण होता है एक कनिष्ठ अधिकारी को, बाकी कोई अंग से उतना जल्दी मिलता नहीं। So therefore Prabhupada emphasizes, especially for neophytes or for sadhakas, the importance of archana, because in archana you use maximum number of senses, your mind and intelligence. So the intensity of purification that comes through uh, parallel utility of all these senses, mind and intelligence in Krishna's service, it purifies the heart very, very quickly. So then he continues. The Lord says, Sakridyadarshitam rupam yetat kamaya te naga matkamashyanakair sadhu sarvan munchati hridshayan. तो नारद मुनि ऐसे सोच रहे थे, तो मतलब आप मुझे ऐसे ही छोड़ के जाने वाले हैं क्या? तो मेरा हृदय का शुद्धिकरण फिर कैसा होगा, और आपका दर्शन तो कैसे होने वाला है? So then Narada Muni was wondering, are you going to leave me like this? How is my heart going to get purified? And how am I going to get your darshan? The Lord said, Sakridyat darshitam rupam. I have shown myself to you once, Narada Muni. Why? Yetat kamaya. Because by that one darshan, your heart will hanker for it. Because you have seen my beauty once. You have heard my beautiful voice once. You have smelled the fragrance of my body once. You will be so intoxicated that you will not be able to think anything. It will create such an intense hankering that by the fire of that hankering to see me again, all your anarthas will be burnt. Etat kamaya tenaga mat kama shanakair sadhu sarvan munchati hrikshaya. Just by that fire of hankering to see Krishna, all your anarthas will be very quickly burnt and you will leave this body and attain. तो पर ऐसा मत सोचो नारद मुनि कि मैं आपको ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ, और आप ऐसे सोच रहेंगे कि अरे मेरा हृदय का शुद्धिकरण का कुछ उपाय है कि नहीं, मैं कैसे मेरा हृदय को शुद्धिकरण करूंगा और आपको कैसे प्राप्त करूंगा, वैसे आप सोचो मत। मैं आपको एक बार मेरा दर्शन दे दिया, एक बार मेरा आवाज को सुनने का मौका दे दिया, एक बार मेरा हृदय का मेरा शरीर का सुगंध को सूंघने का आपको एक मौका दिया है मैंने, और वो ये एक दर्शन का प्रभाव ऐसा होने वाला है कि आपको मुझे प्राप्त करने का एक सुनामी उत्पन्न होगा आपका हृदय में, और वो जो वो तीव्र इच्छा का आग से आपका हृदय में जो भी बचा कुचा अनर्थ है वो सब अभी भस्म हो जाएगा, और आप ये शरीर छोड़ के मुझे आप मेरा सानिध्य आप बहुत जल्द से जल्दी प्राप्त करने वाले हैं, like that. So therefore he says that then Prabhupada बोलते हैं purport में, Prabhupada is telling the purport, a living being cannot be vacant of desires. He is not a dead stone. He must be working, thinking, feeling and willing. But when he thinks, feels and wills materially, he becomes entangled. And conversely, when he thinks, feels and wills for the service of the Lord, he becomes gradually freed from all entanglement. ये जो जीवात्मा है वो इच्छा के बिना रह ही नहीं सकता, वो जड़ वस्तु नहीं है ना, उसको सोचना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, उसको उसका हृदय में भावना विहीन कभी भी वो नहीं रह सकता है। पर जब जो भौतिक वासनाओं से जब वो व्यक्ति पीड़ित होता है तो वो भौतिक चीजों के बारे में सोचता है, भौतिक वस्तुओं के प्रति उसका भावना उत्पन्न होता है, भौतिक
रिश्ताओं के प्रति उसका भावना उत्पन्न होता है। पर जब वो भक्ति में लगना शुरू हो जाता है और आ, 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 क्रमेण क्रमशः उसका जब अनर्थों का जो निवृत्ति हो जाता है और भगवान के प्रति जब वो भावनाओं का उत्पन्न हो जाता है, तो फिर वो पूर्ण रूप से वो भावना सब शुद्धिकरण हो जाता है। दैट इज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ गॉडली सर्विस। यही भक्ति का जो चमत्कार है कि भगवान का भक्ति में लग के पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाता है, और कैसे हमारा जो भौतिक भावना है वो आध्यात्मिक भावना में परिवर्तित होता है, वो हमको भी जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। Material service has satiation, whereas spiritual service of the Lord has neither satiation nor end. जो भौतिक सेवा है उसमें बहुत जल्द से जल्दी हमको थकावट आ जाता है, पर जो आध्यात्मिक सेवा है उसका रुचि आनंदाम्बुधि वर्धनम बढ़ते ही जाता है। One can go on increasing his anchoring for the loving transcendental service of the Lord, and yet he will not find satiation or end. जितना भी वो भगवत भक्ति करते 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 जा सकता है, कभी भी उसको थकावट आएगा ही नहीं। So, and by the intense service of the Lord, one can experience the presence of the Lord transcendentally. तो ये सेवा के द्वारा ही भगवान का सानिध्य को महसूस कर सकता है बहुत जल्द से जल्दी। तो यही भगवान बोल रहे हैं इधर, आप ऐसा मत सोचो कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूँ। मैं आपको एक बार मेरा दर्शन दिया हूँ, एक बार मुझे सुनने का मौका दिया हूँ, सूंघने का मौका दिया हूँ। ये आपका हृदय में इतना एक तीव्र इच्छा का आग को चालू कर दिया कि आपको कभी भी ये आग के द्वारा आपका हृदय का अनर्थों का पूरा जल्द से जल्दी भस्म हो जाएगा और मेरा सानिध्य प्राप्त होंगे। Therefore the Lord says, don't think that I am leaving you high and dry. I have shown you my darshan. So because of that, very, very soon, by the fire of that intensity of, by the intense fire of that eagerness to attain me, you will very soon burn all your anarthas within the heart. Then the Lord says, सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामतिः हित्वावत्यम् इमं लोकं गन्तामज्जनतामसि। सत्सेवया, so satsevaya means by this kind of remembrance of the Supreme Lord, ऐसे भगवान के प्रति स्मरण करने के वजह से अदीर्घयापि बहुत जल्द से जल्दी, वेरी क्विकली, जाता मई दृढ़ामति, यू विल अटेन वेरी फिक्स्ड इंटेलिजेंस इन मी। आपका बुद्धि मुझ में एकदम फिक्स हो जाएगा। हित्वा अवध्यम इमं लोकम गंताम जनतामसी। जब आपका हृदय, आपका बुद्धि, मन सब एकाग्र होके मेरे ऊपर, मेरा चिंतन में लग जाएगा, तब आप ये भौतिक संसार को छोड़ के मेरा सानिध्य का प्राप्त कर देंगे। When your mind and intelligence and your heart is completely fixed in my remembrance, at that time you will give up this material world and you will attain me. So Prabhupada here writes that serving the absolute truth means rendering service unto the absolute personality of God under the direction of a bona fide spiritual master who is a transparent medium between the Lord and the neophyte devotee. भगवान मतलब परम सत्य का जो सेवा का मतलब ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सेवा एक सद्गुरु का आदेश के अनुसार, जो वो सद्गुरु है भगवान और वो जो भक्त का बीच में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा है। तो the neophyte devotee has no ability to approach the absolute personality of Godhead by the strength of his present imperfect senses,
and therefore under the direction of the spiritual master he is trained in transcendental service of the Lord. जो जो कंडीशन सोल है, जो अनेक प्रकार का अनर्थों से पीड़ित जो साधक है, वो अपने भौतिक इंद्रियों से, भौतिक मन, बुद्धि इत्यादि से भगवान का दर्शन करना, भगवान से भगवान का सानिध्य का प्राप्त करना इजी नहीं है, वो बहुत मुश्किल चीज है। पर ये एक सदगुरु का जो मार्गदर्शन और सदगुरु का सेवा के द्वारा ये बहुत ही इजी हो जाता है। इसलिए शास्त्र ये बोलते हैं कि यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। जब जो भक्त है, जब भगवान के प्रति जितना उनका तीव्र भक्ति है, उतना ही तीव्र भक्ति एक गुरु के प्रति हो, तो सब शास्त्रों का जो निचोड़ है उसका हृदय में बहुत जल्द से जल्दी स्थित हो जाता है वैसे। So if someone, the Shastras say that if someone serves the Guru with the same intensity as one would serve Krishna, then very quickly the conclusions of the Shastras get firmly established in his heart. So this is what Krishna is telling, and I think we have already reached the time. So I am sorry I could not complete 2 further verses. So I hope you will forgive me. I just got caught up in recapping, and so I'm really sorry. तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं 2 और श्लोक को खत्म कर नहीं पाया। थोड़ा पुराना जो वर्ष था उसको थोड़ा बोल के, और मेरा इंटरनेट का भी कुछ प्रॉब्लम था, तो खत्म नहीं कर पाया, तो माफ कर दीजिए। Thank you, Prabhu. Prabhu, actually, we don't have any problem, Prabhu, if you want to take 5-10 minutes more, Prabhuji. If it is convenient to you, Prabhu, it is comfortable with you. I can take, but would you prefer that I continue to complete the 2 verses, or do you have some time for question and answer session? Yes, Prabhu. So, Prabhu, we can hear, Prabhu, these 2 questions, these 2 verses, Prabhuji, and but it will be very late for you, right, Prabhuji? Very late there in India, Prabhuji. It will be 10 o'clock approximately. But generally, do you have Q&A sessions, or you don't have? We have questions, Prabhuji. Yes, Prabhu. Okay. So, okay, I will quickly complete the 2 verses, and then maybe 5-10 minutes at least we will take some questions. मैं बहुत जल्द से जल्दी वो 2 श्लोकों को खत्म करने का प्रयास करता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। Thank you. Then Krishna continues, मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। और भगवान ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसा मत सोचो कि अगर आपका जो मति है और मेरे प्रति एकाग्र हो जाता है, जैसे कुंती महारानी का प्रार्थना है, मतिर मधुप त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत रतिम उद्वहता दद्दा गंगे वोगम उदन्वती। जैसे like Kunti Maharani prays that let my mind flow towards you without any hindrance. So जैसे कुंती महारानी बोलते हैं कि मेरा जो मति है आपके प्रति ऐसा दौड़े कि बिना कुछ रुकावट, जैसे गंगा एक समुंदर के द्वारा दौड़ती है, कोई भी रुकावट हो उसके ऊपर चढ़ के या साइड में जाके या उसको कैसे भी करके वो समुंदर तो पहुंच ही जाती है, वैसे मेरा मति ये जो भौतिक जो रुकावट है उसको छोड़ के मेरा पहुंच जाए आपका आपके प्रति। So Krishna is telling, if your intelligence is engaged in me, it's absorbed in me, na vipadyeta karhichit, so then failure is not for you, success is guaranteed. Praja sarga nirodhepi smritischa madanugrahat. Then
if you have attained that kind of situation, even during the creation or the time of annihilation, no one can destroy your remembrance of me. अगर वो प्रकार का एकाग्रता मेरे प्रति आप प्राप्त कर चुके हैं, कर लिया, तो अगर ये जो भौतिक संसार का या ये जो सृष्टि का जो संहार का समय में भी आपको वो जो स्मृति का संहार कभी नहीं होगा। तो वैसे भगवान नारद मुनि को सांत्वना देते हैं और उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ के जा रहा हूं, आप ऐसा मत सोचो, पर मैं आपको मेरा स्मरण को छोड़ के जा रहा हूं, और वो स्मरण जो है उसमें जो शक्ति है वो बहुत ही गहरा शक्ति है। वो आपको आपको विजय के ओर खींच के जाएगा, और आपका विजय प्राप्ति तो जरूर होगा। So don't think, O Narada Muni, that I am leaving you, half. I have given you my remembrance, and when your mind and intelligence is fixed in my remembrance, success is guaranteed for you. You will attain success. Don't worry. And then finally, the Lord says, "Etavadukvo pararama tanmahat bhutam nabolingamalingamishwaram aham cha tasmai mahatam mahiyase Srishnāvanāmam vidadenukampitah." So, etavaduktva, after having spoken in this way, ऐसा इतना सब नारद मुनि को बोलने के बाद, उपराराम, he stopped speaking, भगवान बोलना बंद कर दिए, and then भूतम नभोलिंगम alingam ईश्वरम, that Lord who was making his presence felt only by the effect of sound, वो जो भगवान जो उनका जो शब्द के द्वारा उनका नारद मुनि को संपर्क में थे, अलिंगम, पर उनका जो लिंग को, उनका जो फॉर्म को, रूप को देख नहीं पा रहे थे। नारद मुनि could not see the form of the Lord. He says, aham cha tasmai mahatam mahiyase शीर्ष्णावनामं विददे अनुकंपितः। मुझे उनके प्रति इतना कृतज्ञता आ रहा था मेरा हृदय में, मैं उनको तुरंत दंडवत प्रणाम किया। I felt a deep sense of gratitude towards the Supreme Lord, and I immediately offered my obeisances like that. So in this way, the Lord has come, shown himself to Narada Muni, and that he has left also. So further, how Narada Muni perfects his life, achieves prema, and becomes a personal associate of the Lord, you will get to hear it from the next speaker. So I want to thank His Grace Braj Prakash Prabhu very much for offering me this opportunity to share Krishna Katha. मैं ब्रज प्रकाश प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आपका संग में कृष्ण कथा बोलने का एक अवसर दिया मुझे। तो अभी कुछ एक 5-10 मिनट के लिए कुछ प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, अगर टाइम है तो। If we can take some questions if we have some time. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. You narrated so wonderfully. You recapped the previous verses also, and very much these verses, Prabhu, the way you churned it, and so many aspects, specifically that how we can see that anartha is still the bhava stage, and also you mentioned that the 3 category of people, that was very enlightening, Prabhuji. So, Prabhu, with your permission, we'll have some question now. So, one question, Prabhu, I want to ask Prabhu in this regard. Please correct my understanding, Prabhuji, that in case of sadhaka, you mentioned that sadhak bhakta also, the situations which is orchestrated by Krishna is not due to karma, as like the karmis. And reactions in that situations, that may be because of 2 reasons. Correct. Right, Prabhu?
Yeah. Okay. So Prabhu, now His the response to that situation. How would he respond to a situation of either suffering or happiness? How he will respond? Sometimes he may respond according to uh, in a way that befits a devotee, what he has learned from Guru, Sadhu, and Shastra. And sometimes, when his heart is weak due to anarthas, he may respond being impelled by the vasanas also sometimes. okay. So Prabhu, even the neophyte, as you mentioned that word, even neophyte devotees. So even in their life, also the situation is orchestrated by Krishna, right, Prabhuji? Yes, 100%. Okay, Prabhu. Okay, Prabhuji. So Prabhu, what is that which will allow that devotee to take the or to give the response in situations based on maybe now uh, I mean, just correct me, Prabhuji. Now he started the practicing Krishna consciousness. He's hearing also, and he's following the instructions what he's receiving from the Shastra and Guru. But is still the factor of anartha will play a role, or it is his determinations which will not allow him to take the or give the response as it is expected in a situation, or as we hear also Hridaya Daurbaltam, as you mentioned, the weak heart due to the four the Tattva Vibhrama and those kind of things which is given by Vishnu Chakravartipad. So what is that which will allow that devotee to take actions or to respond in this two different way? तो प्रभु जी का प्रश्न ऐसा है कि जो भक्त है, जो काफी दिन से भक्ति कर भी रहा है, पर फिर भी हृदय में अनर्थ पूर्ण रूप से गया नहीं है, तो क्या उनका जो वो परिस्थिति का जो रेस्पॉन्स है वो किसके ऊपर निर्भर है? वो फिर भी बार बार उनका अनर्थों से पीड़ित होके वैसा ही वो रेस्पॉन्ड करेंगे वो परिस्थिति से, या उनका डिटर्मिनेशन जो शुद्ध भक्ति का जो श्रद्धा है, वो जो डिटर्मिनेशन है, वो उससे वो रेस्पॉन्ड करेंगे, कैसा है? तो the answer, Prabhuji, it depends on, to a large extent, it depends on the mm, the association, and to how nicely, actually, one thing that you really brought about is Hridaya Daurbalyam, weakness of heart, and Srila Rupa Goswami, I'm sorry, Srila Bhaktivinoda Thakur, in one of his books, he says, how to overcome Hridaya Daurbalyam. So, he says, follow nectar of instruction, verse 4. He says, Dadati pratigranati guhyamakyati prichati bhunkte bojayate cheva shadvidam priti lakshanam. So, हृदय दौर्बल्यम, जो दुर्बल हृदय, जो काम क्रोध लोभ इत्यादि से पीड़ित है, वो जो हृदय दौर्बल्य, वो दुर्बल हृदय को कैसे हम पार करें? तो भक्तिविनोद ठाकुर उनका एक ग्रंथ में बताते हैं कि जो आप उपदेशामृत का 4था श्लोक को पालन करेंगे, तो ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव, ये षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये जो 6 प्रकार का कार्य जब हम करते हैं, जो प्रीति का लक्षण है, तो ये तो हृदय दुर्बल क्यों है? क्योंकि वैष्णव प्रीति से उसका पोषण नहीं हुआ. The heart is weak because the heart has not been nourished by the kindness of Vaishnavas. But when the heart becomes nourished by the loving relationship with Vaishnavas, then very quickly we don't succumb very easily to lust, anger, envy, greed, etc. But when our heart is not sufficiently nourished by Vaishnava's affectionate relationships, because of not following these 6 principles of Dadati Pratigranati, then
that lack of nourishment manifests in perverted ways in the form of lust, anger, envy, greed, like that. अगर हमारा हृदय ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति इत्यादि ये जो षड प्रीति का जो लक्षण है, ये जो 6 प्रकार का कार्यों से अगर हमारा हृदय वैष्णव प्रीति से पोषण नहीं हुआ, फिर वो जो दुर्बल हृदय है वो उसमें काम क्रोध लोभ इत्यादि से जो एक बहुत नीच स्तर का जो सेटिस्फैक्शन है, नीचे स्तर का वो जो सेटिस्फैक्शन है उसको खोजना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये जो मैं पहले बार पढ़ा तो एकदम मेरा मैं हिल गया एक्चुअली। हम तो काम क्रोध को ऐसा सोचते हैं, पर भक्ति विनोद ठाकुर तो ऐसे बोलते हैं कि अगर आप ये जो 6 प्रकार का जो एक्टिविटीज है उसमें आप लगते हैं तो आपका हृदय दौर्बल्य चला जाएगा। You know, your weak heart will become very quickly nourished by these 6 activities, and you will not succumb. So therefore, the answer to Braj Prakash Prabhu's question is that association is the single most way of overcoming. You know, that defines how we are able to overcome the influence of these anarthas, whether who will win this tug of war, whether anarthas will win or whether our shraddha will win. It depends on how much we are nourished in the association of devotees. तो टग ऑफ वॉर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वो रस्सी की खींच होती है प्रभु जी, रस्सी की खींच बोल सकते हैं। रस्सी की खींच, अदर दोनों साइड से अलग अलग टीम रहते हैं जो खींचते रहते हैं रस्सी को। जो बलशाली जो टीम है वो खींच लेते हैं। तो अगर हम वैष्णवों का प्रीति का बल से एकदम स्ट्रांग रहते हैं तो जो काम क्रोध इत्यादि अनर्थों का जो खींच से हम बच सकते हैं। तो वैष्णवों का जो संग है यही एकमात्र उपाय है। हम कितना जोर से खींच के ये स्पर्धा को जीत पाएंगे वो उससे ही निर्भर है। दिस इज वन how much we are nourished in the association of devotees. That is the one single determining factor whether we will win this battle or lose. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. This I heard for the first time. Very, very inspiring, Prabhuji. Very, very inspiring. Thank you so much. किसी और भक्तों की कोई जिज्ञासा अगर है, एक प्रश्न और हम ले सकते हैं। बहुत अच्छा हमारे पास अवसर है ये। So Prabhu, you explained in such a nice way that there is no further doubt, Prabhuji. So thank you so much, Prabhuji. And we are very, very indebted to Bhaktivinoda Vidyapeeth. We have been referring here, Prabhuji, at Subodhini, the Bhagavad Subodhini, Chaitanya Charitamrita Subodhini, and Bhagavad Gita Subodhini. And so many wonderful work is being done there. And so many wonderful devotees are serving there. We are very much indebted to all of you, Prabhu, for such a wonderful contribution. प्रभु एक प्रश्न हाथ उठाया प्रभु जी, ले सकते हैं प्रभु जी? या अर्चित प्रभु जी, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि अभी हम भागवत में सुना है कि ध्रुव महाराज भी कोई उद्देश्य से भगवान मिलने के लिए जंगल गया है।
मतलब वन गया है, वन गन के उन तपस्या करके फिर भगवान का दर्शन होके उनका जो जैसा इच्छा है उनका वो मिला है गुरु को। तो ये मैं ये से कैसे समझूं गुरु को, ये दोनों का नारद का ऐसा होना है। मेरा प्रश्न समझिए गुरु। हाँ प्रभु, ब्रज प्रकाश प्रभु, कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन? आई कुड नॉट रियली अंडरस्टैंड। जी प्रभु, तो प्रभु क्वेश्चन इज दैट यू मेंशन दैट just going to forest, as we heard, that is not sufficient. Yeah. What should, so we heard that how Dhruv Maharaj, he went to forest, but he had some objective and he achieved the lordship. So how to understand this incident and the Narad Muni incident, that it was a kalmash. Going to forest was a little bit desire, and tinge was there, the tinge of desire, that was a contamination. However, we see that Dhruv Maharaj went there and got the perfection. तो इसका ये है कि ऐसा नहीं है कि जो भी वन में प्रवेश करते हैं उनको वो सत्वगुण का जो कल्मश है ही है, वैसा नहीं है। जैसे पृथु महाराज भी फॉरेस्ट में गए, प्रहलाद महाराज भी फॉरेस्ट में गए, पर ऐसा जरूरत नहीं है कि कोई भी वन में जाते हैं तो उनको वो सत्वगुण का जो कल्मश के वजह से ही जाते हैं, वैसा जरूरत नहीं है। जो शुद्ध भक्त है वो कहीं पे भी भक्ति कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नारद मुनि वन में गए उससे हम समझ सकते हैं कि उनका सत्वगुण का कल्मश था थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र वैसे नहीं बोल रहे हैं और आचार्यगण वैसे नहीं बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि उनका सत्वगुण का कल्मश था, उनको पहले से ही पता था, इसके वजह से वो जो वन में रहने का थोड़ा बहुत उनको इच्छा था। ये जो आचार्यगण है, इनको ये साधारण व्यक्ति नहीं है प्रभु जी, ये जो है उनको लीला स्फूर्ति है। जो लीला हो रहा है उसका साक्षात दर्शन है उनको। जब वो लिखते हैं उनका मत नहीं लिखते हैं, उनका जो साक्षात दर्शन भगवान उनको दे रहे हैं उसको लिखते हैं। और दर्शन काली वो लीला का दर्शन नहीं है, पर वो जो लीला में जो भाग ले रहे हैं वो सब जो डिवोटीज है, भक्तगण है, उनका हृदय का भी दर्शन उनको मिलता है। तो नारद मुनि ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आचार्यगण ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी वन में जाते हैं उनको सत्वगुण का कल्मश है, वैसा नहीं है। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि उनका सत्वगुण में कल्मश है क्योंकि उसका दर्शन आचार्यों को भगवान ने दिया है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि उनको वन में रहने का थोड़ा बहुत इच्छा था। पर ये सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी ने वो श्लोक में नहीं लिखा है कि नारद मुनि का हृदय में वो सत्वगुण का कल्मश है बोल, पर ये आचार्यगण का स्फूर्ति है, इसलिए वो देख पाते हैं, इसलिए वो उसके बारे में लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई भी वन में जाते हैं, वन में जाके भक्ति करते हैं तो उनको सत्वगुण का जो कल्मश है वैसा जरूरत नहीं। ठीक है प्रभु। Thank you, Prabhu. Prabhu, one last question, Prabhu. Just the way you explained about this verse, the 10:14:8, Tatyanukampam. तो उस श्लोक के द्वारा प्रभु जी हम ये एक साधक भक्त जो है कैसे समझेंगे अपने जीवन में। जैसे इसमें बताया गया कि मेरे विगत दुष्कर्मों के परिणाम, जो पूर्ववर्ती कर्म है उसका परिणाम मुझे ऐसा मिल रहा है। और अभी हमने सुना कि जो साधक भक्त हैं उनके जीवन में जो स्थिति आती है वो उनके कर्मों की वजह से नहीं आती है, वो भगवान उसकी योजना बना रहे हैं। तो क्या ऐसी अवस्था में जब ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है मेरे दुष्कर्मों का परिणाम है, ये क्योंकि वो इतने विनम्र हैं कि अपने आप को भक्त नहीं मानते इसलिए ऐसा कह के वो प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रकार से, या फिर ये समझते हुए कि ये स्थिति तो भगवान ने लाई है लेकिन मेरा जो रिस्पॉन्स है
वो भक्तों जैसा नहीं हो रहा है, वो मेरी कमी है अपनी तरफ से। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु। एक्चुअली दो प्रकार का भक्त है। एक है जो साधक है और एक है जो सिद्ध है, जो भाव और प्रेम का स्तर पे है। जो भाव और प्रेम का स्तर पे है, उनका जो एक स्वाभाविक गुण है मान शून्यता। तो एकदम उनको हम्बल है, उनको खुद को एक बहुत बड़ा भक्त मानते नहीं है, उनको खुद को एक भक्त भी नहीं मानते हैं। तो एक स्वाभाविक रूप से जो भाव का जो 9 लक्षण आ, आ, दिया गया है, क्षांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशा बंदा समुत्कंठा नामगानी सदा रुचि इत्यादि जो गुण है, उनमें से एक है मान शून्यता। वो स्वाभाविक रूप से खुद को भक्त नहीं समझते हैं वो। और इसलिए वो ऐसे सोचते हैं कि अरे, जो मेरा जो आ, जो सफरिंग है, वो मेरा उसको इसका ये मतलब है कि मेरा कर्म अभी तक खत्म नहीं हुआ। और अगर कुछ उनको बहुत ही अच्छा परिस्थिति में भी आ गए, तो फिर भी सोचते हैं कि हाँ, मेरा कर्म अभी भी, अच्छा कर्म भी अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो ये उनका परिस्थिति है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उसको हम कुछ बोल नहीं सकते, अरे ये तो सिद्धांत के विरुद्ध है। एक साधक भक्त का भी जो परिस्थिति है उसका कर्म के अनुसार नहीं है। तो क्या एक सिद्ध भक्त ये समझता नहीं है क्या? समझते हैं, पर वो सिद्धांत के सिद्धांत का जो इम्पिटस से वो कार्य नहीं करते हैं, पर प्रेम का इम्पिटस से कार्य करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत बोलते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझे। वैष्णवों का ये जो श्लोक है, भाव और प्रेम का स्तर का वैष्णवों का लक्षण है, एक साधक का लक्षण नहीं है। तो जो तो भक्ति सिद्धांत का विरुद्ध भी उनका सोच, उनका शब्द और उनका क्रिया हो सकता है, क्योंकि वो शुद्ध प्रेम से प्रेरित होके वो कर रहे हैं, वो सिद्धांत से प्रेरित होके नहीं कर रहे हैं। तब जब शुद्ध प्रेम हो, जब बहुत ही भौतिक संसार में भी अगर कोई बहुत ही बहुत दुख से या बहुत सुख से या बहुत एक्साइटमेंट से प्रेरित हो जाता है व्यक्ति, तो वो कॉमन सेंस के द्वारा वो काम नहीं करता है। तो वैसे ही प्रेम जो है बहुत ही एक इंटेंस इमोशन है। तो उनका वैसा सोच सिद्धांत के विरुद्ध भी हो सकता है। वो उनका दोष नहीं है, वो उनका एक्चुअली एक आभूषण है। तो ये शुद्ध भक्तों का है। शुद्ध मतलब सिद्ध भक्तों का है। पर शुद्ध भक्ति का जो साधक का स्तर पे जो है, उनमें तत्तेदुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। उधर विपाकम शब्द का मतलब पाप नहीं है, विपाकम शब्द का मतलब है अपराध। मेरा जो ये परिस्थिति है, मेरा जो बुरा हाल चल रहा है अभी, वो मेरा अपराध अपराध चेतना का और अपराध भरी कर्मों का जो परिणाम है। पर फिर भी मेरा आ, आ, पर फिर भी मेरा जो लाइफ है वो कृष्णा ही निर्भर कर रहे हैं, कृष्णा के ऊपर निर्भर है। नहीं तो उनको हृद्वाग वपुर्भिर विददन नमस्ते क्यों? अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा जो परिस्थिति है, मेरा जो कष्ट है, वो मेरा ही दुष्कर्मों के प्रति हो रहा है, तो भगवान के प्रति वो कृतज्ञता प्रकट करने का पर्पस क्या है? हृदवाग वपुर्भिर, उनका हृदय से
उनका वाक्य से और उनका शरीर से भगवान के प्रति कृतज्ञ क्यों? अगर सब कुछ उनका जो बुरा हाल है उनका दुष्कर्मों के प्रति ही हो रहा है, तो उनको कृतज्ञता आने का जरूरत क्या है? कृतज्ञता ये आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि वो क्लियरली देख पा रहे हैं कि भगवान ही मेरा लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इधर भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, एक साधक का इसमें इसका जो मतलब है विपाक है, विपाकम का मतलब है मेरा अपराध। Thank you, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. So we are very, very grateful to you, Prabhu. And the way you explained all these verses and so many wonderful aspects, Prabhu, to learn and to practice. So thank you so much, Prabhuji. And we look forward for your association in your future also. So all Sorry, I together, took over the translation also from you after some time. it was very nice, Prabhu. It was very nice. And the way you were speaking Hindi, it was very sweet, Prabhuji. तो आपके मुख से बहुत मधुर लग रहा था हिंदी। पर फिर भी मतलब साउथ इंडियन हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु जी, आपको बहुत अच्छा हिंदी आप बोल रहे थे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी मिलकर प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे। ऑल टुगेदर विल एक्सटेंड आवर ग्रैटिट्यूड बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र एंड वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा